I think so. After Indira Gandhi assassination, that terrorist group was more active in the Punjab that time. 2-3 famous terrorist groups was very active, and they have already kidnapped one of the doctor and killed them. And my God. my father has got the letter, so I have also read in the Punjabi in that letter when I had grown up. You have to give us 25 lakhs. Uस time 25 lakhs. Yeah, that time it was 25 lakhs. Otherwise, we are going to kill whole of your family. कि मेरा फर्स्ट टाइम पे सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो पापा ने कहा था नो वे, आई एम नॉट गिविंग यू एनी अदर ऑप्शंस इन द लाइफ टू डू एनीथिंग, यू हैव टू सिट एंड प्रिपेयर फॉर 1 more ईयर। उस जैसे ही मुझे फर्स्ट ईयर पता लगा मेरा रैंक नहीं आया है, तो मैं उसी शाम से फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। देन अदर रिजल्ट केम, मतलब सेकंड लिस्ट जो आती है, सेकंड लिस्ट कम, सो उसमें मेरा 1800 रैंक था। सो माय पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी। तरुण ने डायलॉग मारा, एक सलाम नमस्ते मूवी का डायलॉग है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तुम परफेक्ट नहीं हो, हमारी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है, पर मेरे लिए हमेशा तुम परफेक्ट रहोगी। My God. So that dialogue, yeah, that dialogue still I remember. So it was 27th of January 2009. तो then he told, एक काम करते हैं, तुम शादी कर लो ताकि तुम्हारे पापा फिर शादी ना करवा पाए और फिर तुम चले जाना उसके बाद। We got married, so that with very few friends. Yeah, so शादी के बाद एकदम से तरुण कहता है, now you go and tell your father that you got married. मैं कहा no, I will not tell. I got scared. So once they came when Tarun was not at home, I just opened the door. But with my mother, when I saw there were around 10 to 15 relatives of mine. So they snatched me, they locked the door and they put the key on the window and put a note, we are taking her. And I also overheard they will transport me to another country or US or something like that. So मैंने तभी माइंड बना लिया था कुछ तो करना है मुझे अभी नेक्स्ट एक आर में। जब मदरहुड में एंटर करें तो क्या हमने छोड़ दिया अपना ड्रीम आगे प्रोफेशनल लाइफ का? तब मेरे को आई वाज लाइक दिस इज सच अ ब्यूटीफुल लाइफ इन फ्रंट ऑफ मी, आई वांट टू रीलिव दिस लाइफ थ्रू हर आईज एंड जस्ट पैम्परिंग हर। आई डिड माय कोर्स, आई हैव डन द फैमिली मेडिसिन फ्रॉम सीएमसी वेल्लोर। तो पढ़ाई नहीं छोड़ी हमने? नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़ी। पढ़ाई भी करेंगे, फैमिली भी देखेंगे और खुश भी रहेंगे। खुश भी रहेंगे। Namaste. Welcome back to Doc Diaries. I'm your host, Dr. Preeti Sharma. We often know that doctors are considered very sorted out individuals. But what happens when a doctor defies expectation, chooses cultural norms, and chooses love over tradition? क्या होता है जब उनकी अपनी जिंदगी एक पर्सनल जंग बन जाती है? Today, we have a very special guest with us, a talented physician, a loving mother, who has dared to go beyond the conventional choices, choosing her own path. उनकी जिंदगी एक बॉलीवुड स्टोरी से कम नहीं है, जहाँ पर किडनैपिंग और भागना और प्यार मोहब्बत सब मिल के एक स्टोरी बनती है। तो ऑन दिस नोट लेट मी वेलकम डॉक्टर श्वेता गोयल टू डॉक डायरीज। नमस्ते डॉक्टर श्वेता, वेलकम टू डॉक डायरीज। Thank you, Dr. Preeti. Thank you for having me here. I'm really excited to be part of this podcast and to share my story with everyone over here. So let's start with the first story. कि when you had to, your father, your mother and your family had to face some threats. And वो रात का midnight scene कि आप लोग ट्रक में भागे and कैसा था वो feeling and कैसे आप लोग ने experience किया और क्या था वो?
So where did एकदम you से- go? So we came to Haryana because some of my relatives and cousins were there. So we wanted to shift to another state जहाँ पे ये सब चीजें ना हो तो they जहाँ पे didn't सब follow चीज़- you there. Yeah, The robbers I and think the so. After that, also terrorist threats and everything keep coming. But yeah, my father did not told his location where he went off. Understood. So that is the one thing. राइट अभी आप चले हम लोग चले गए हरियाणा में अब वहाँ हरियाणा में गए तो आपका एक नया लैंग्वेज है क्योंकि पंजाबी से आप हिंदी लैंग्वेज में गए मतलब जट के उसमें गए तो वहाँ आपको स्कूलिंग भी आपने ज्वाइन करी तो वाज इट समथिंग डिफरेंट देयर एंड हाउ डिड यू अडैप्ट इन द स्कूल देयर So I was in the middle of the semester when we shifted from Punjab to Haryana. So it was very difficult for me. But I was very studious and hardworking students. मैंने notes लेके tuitions लेके I tried to cover up the 6 months lag of my studies. एंड पर मेरे दिल में जैसे मैंने बोला मेरे में आज भी मेरे को आप पंजाबी बोलने के लिए बोलो तो आई एम रेडी टू स्पीक पंजाबी रादर देन हिंदी तो मेरे मुंह से अपने आप ही पंजाबी निकलती थी वहाँ पे क्योंकि पंजाबी वाज माय फर्स्ट लैंग्वेज राइट एंड वी नेवर इन द घर पे भी हम मम्मी पापा के साथ पंजाबी में ही बात करते थे तो हिंदी वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ग्रैस्प एंड स्पीक विद द फ्रेंड्स तो स्कूल में जाती थी तो मैं पंजाबी में बात करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ सो दे स्टार्ट लाफिंग तो एक इंसिडेंट मुझे याद है तो आई वाज जस्ट सिटिंग विद माय फ्रेंड तो शी वाज ईटिंग समथिंग एंड ऑन हर लिप्स दैट समथिंग वाज देयर तो मैंने कहा तेरे बुल्ल ते कुछ लग गया हुआ है कहती व्हाट इज बुल सो मैंने कहा पंजाबी में बुल इज अ होट होट को हम बुल कहते हैं देन शी स्टार्टेड लाफिंग एट मी ओ यू डोंट नो हिंदी एंड ऑल देन आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज इट वाज लिटिल I came from that situation and I was very sensitive at that point of time. I came home, started crying to my mother, please teach me Hindi, I want to learn Hindi. फिर सीखा आपने हिंदी So then, yeah, obviously after the years I started. Okay, now let's go into your teenager group where you are going into 10th and दिमाग चल रहा है पढ़ाई में हमारा and you are already in that frame of mind कि my dad is a doctor, I have to also live up to his expectation and I want to become a doctor because of your dad being a doctor, you wanted to become a doctor. Was that too troubling an expectation on yourself? So Preeti, I think यहाँ पे somewhere सोसाइटी का प्रेशर्स है हमारा कि डॉक्टर की बेटी डॉक्टर ही बनेगी या लॉयर की बेटी लॉयर ही बनेगी और इंजीनियर्स और आई थिंक सो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को हम आज तक बोलते हैं कि सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही बनो एंड एज आई टोल्ड आई कम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन जहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत इज्जत होती है एंड वेरी गुड रेपुटेशन एंड लाइक गर्ल्स आल्सो गेट लाइक इजीली डॉक्टर्स आफ्टर द मैरिज दैट इज आल्सो वन पॉइंट द पेरेंट्स विल कंसिडर टू मेक यू एज अ डॉक्टर और इंजीनियर सो दे डोंट हैव टू स्ट्रगल टू फाइंड अ गुड बॉय फॉर यू बट समवेयर आई नेवर थॉट कि आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर डीप डाउन क्योंकि मैंने देखा है वो स्ट्रगल पापा का ही नेवर यूज्ड टू स्पेंड his time with us, always with the patients and घर में याद आती होगी कि कभी बाहर जाना है तो कभी पापा बाहर कहना जाना है तो मम्मी के साथ ही जाना पड़ता था पापा was like only once in a month if we want to go out we have to go so there was no social life this I know कि डॉक्टर है तो social life नहीं होगा आपका आपको पेशेंट के साथ ही दिन रात and they can trouble you at the middle of the night 12 o'clock एक बजे कुछ भी है and आप मना नहीं कर सकते because you're bounded by that you know हम लोग का oath होता है कि हमको सर्व करना है तो that's a very good thing but yeah the doctor's life is that doctor's life you have to accept it as it is तो अगर आप डॉक्टर नहीं बनते उस टाइम तो आपके दिमाग में कुछ और था आप क्या बनना चाहते थे Yeah, so many things was there. I wanted to become pilot. अरे वाह Yes, I wanted to do something outgoing. कहाँ जहाँ पे मैं हमेशा travel करती रहूँ, keep meeting new people, and I don't have to bound in one room and see the patients and all that thing. बोला घर में आपने कि मुझे ये बनना है मैंने तो पापा कहते हैं okay you do the MBBS after that you can write the IAS exam पहले or तो डॉक्टर बनना ही बनना है पहले डॉक्टर बनना ही बनना है आपको so that was the criteria for me. बट आजकल के मैं बच्चों को वही सलाह देना चाहूँगी कि पेरेंट्स को दे शुड नॉट इम्पोज देयर थिंग्स ऑन द किड्स वट एवर दे वॉन्ट टू बिकम दे शुड बिकम लाइक आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं दे आर इनटू सो मच ऑफ क्रिएटिव फील्ड्स now the generation has changed Shweta. कि मेरा फर्स्ट टाइम पे सिलेक्शन नहीं हुआ था तो पापा ने कहा था नो वे आई एम नॉट गिविंग यू एनी अदर ऑप्शंस इन द लाइफ टू डू एनीथिंग यू हैव टू सिट एंड प्रिपेयर फॉर वन मोर ईयर कैसे भी करो तुम्हें सीट लेना ही है और मैं कोई डोनेशन नहीं दूंगा कुछ मेरिट से लेना है तुम्हें मेरिट से लेना है तुम्हें अपना रैंक लेके एज आई टोल्ड यू माय फादर वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग ही हैज डन ऑन हिज ओन हार्ड वर्क व्हाटएवर ही हैज बिल्ट तो ही वांटेड समवेयर फॉर मी आल्सो टू डू लाइक दैट
तो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। उस जैसे ही मेरा मुझे फर्स्ट ईयर पता लगा मेरा रैंक नहीं आया है, तो मैं उसी शाम से फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और मैंने ऐसा उस रूम को, अपना रूम को ऐसा बना लिया था कि इस रूम से बाहर नहीं निकलना 1 साल तक, मुझे लोगों से नहीं मिलना है, सिर्फ पढ़ना है। मेरे रूम में पूरा आई हैव स्क्रिबल्ड ऑल द नोट्स एवरीथिंग, इट वाज लाइक आई हैव गॉन मैड स्टडिंग देयर। So my books was there and scribbling was there. I never used to attend any occasions, होली दिवाली क्या होता है मुझे पता ही नहीं था 1 साल तक। और फिर आपने सब इतना 1 साल करा? 1 साल किया, और उसके बीच में भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मुझे पापा ने कहा था कि यहाँ पे जींद करके जगह है हरियाणा में, तो वहाँ पे अच्छा कोचिंग नहीं होता है, तो तुम्हें हिसार जाना पड़ेगा, वहाँ पे मेडिकल का बहुत अच्छा कोचिंग होता है। पर हिसार में भी मेरे को एक ऐसी जगह पे डिंजी प्लेस, कोई हॉस्टल, स्कूल में कोई ऊपर एक रूम था जहाँ पे पानी नहीं था, कूलर नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत छोटा सा रूम। आई थिंक सो वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टे फॉर द ह्यूमन बींग्स देयर। पापा ने कहा कि कहते यहाँ पे तो यही ऑप्शन अवेलेबल है अगर आपको पढ़ाई करनी है। घर से 2 घंटा दूर था। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आई विल स्टे हेयर। हॉस्टल वेरी डिंजी प्लेस। आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने कैसे पढ़ाई किया है। साइकिल में जाती थी, बहुत दूर था मेरा हॉस्टल, अकेली रहती थी मैं वहाँ पर। रात में मम्मी पापा कभी कभी 1 महीने में या 2 महीने में मिलने आते थे। नॉट लाइक दे वर नॉट कंसर्न, बट दे वॉन्टेड मी कि पढ़ लूँ, कुछ बन जाऊँ इस साल तक। बहुत ज़्यादा प्रेशर था मेरे पे। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक प्रेशर एक बच्चे पे इतना है कि तुम्हें मेरिट सीट लेना है, इतना पढ़ना है, कुछ भी करना है उसके लिए, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है तुम्हें उसके लिए। एंड यू गॉट द सीट। या सो आई एम जस्ट टेलिंग। तो उसके बाद इट वाज डिफ़िकल्ट। मेरे को फिर आकाश जाना पड़ता था दिल्ली में, क्योंकि हिसार से कोचिंग ख़त्म हो गया, तो अभी फिर मुझे जींद से दिल्ली सुबह सुबह 5 बजे वाली बस पकड़ के आकाश की कोचिंग के लिए जाना पड़ता। जाते थे? उठ जाती थी। आई वाज लाइक, और मेरे पापा ने, मेरे पास सारी फैसिलिटीज़ थी घर पे। माय फादर वाज वेल टू डू, ड्राइवर्स थे, सब थे, पर मेरे पापा हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ हमेशा बोलते थे कि तुम्हें अपने आप ही करना है जो भी करना है। आई कैन गिव यू ऑल द फैसिलिटीज़, यू कैन गो बाय द ड्राइवर, बट आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस योर लाइफ एट योर ओन। सो ताकि तुम आगे बढ़ के जब भी कुछ बनो तो एटलीस्ट तुम्हें कभी डिफ़िकल्टी ना हो, हम लोग हमेशा नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। बहुत अच्छी सीख होती है पेरेंट्स की, जो हम इग्नोर कर लिस्ट जो आती है। सेकंड लिस्ट कम, सो उसमें मेरा 1800 रैंक था। सो माय पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी कि ओके डॉक्टर बन रही है मेरी बब्बल का रैंक आ गया है। सो एवरीवन वाज लाइक लड्डू वड्डू लेकर आ रहे हैं, सो मिठाई वगैरह लेके आ रहे हैं। सो एंड आई वाज वेरी हैप्पी। देन द टेंशन गॉन अवे। और उसके बाद देन द काउंसलिंग में फिर जब हम जाते हैं तो, पर साउथ नॉर्थ का कोई कॉलेज अवेलेबल नहीं था, सो इट वाज ओनली साउथ कॉलेजेस वाज एट दैट टाइम। तो इसीलिए फिर वो चूज हुआ ट्रिवेंड्रम। सो इट वाज एट ट्रिवेंड्रम। और फिर आपको उसको अपने फ्लाइट पे नहीं गए, आप अपने ट्रेन में गए। And Trivandrum was also reason for choosing Trivandrum because my father thought कि Trivandrum is the capital of Kerala, so वहाँ पे direct connectivity of the flights and train रहेगा, तो that was the reason of choosing the Trivandrum also that time. आप ट्रिवेंड्रम पहुंचे और वहाँ आपने 1 साल बिताया, और वहाँ ट्रिवेंड्रम में आपको कैसा कल्चर डिफरेंस लगा अपने पंजाब से? So Kerala is very good, beautiful state, I will say. God's own country. Now being I'm a half Mallu. The people who knows me, so I'm actually a half Mallu. I cook Kerala food at my home. So this is the change I am having right now. But that time, that point of time, it was very difficult क्योंकि I come from Punjabi family, जहाँ पे हमें रोटी चाहिए, 3 टाइम रोटी चाहिए, या
स्पून से खाना खाते हैं, हम हमारे कल्चर में नहीं था हाथ से खाना। तो एंड आफ्टर गोइंग देयर, जब मैं मेस में गई पहली बार तो देखा वहाँ पे कोई स्पून ही नहीं है। मैं आई वाज सर्चिंग फॉर स्पून्स की चम्मच है कहीं पे, तो कहते नहीं यहाँ पे तुम्हें हाथ से खाना पड़ेगा। तो एंड ट्राइड ईटिंग विद हैंड, तो देखा पूरा मेरे पे स्पिल हो गया, खाना पूरा गिर गया। देन आई थॉट ओ माय गॉड हाउ टू Survive here. सर्वाइव हियर। तो माय फ्रेंड्स टॉट मी हाउ टू, यू हैव टू डू लाइक दिस एंड देन पुट ऊपर मुंह करके ऐसे खाना है। मैंने कहा ओके। सो दैट वाज वन ऑफ द अदर लाइफ, आई एम टेलिंग दैट आई गॉट अनदर लाइफ इन केरला। एंड और वहाँ पे वी वर वेजिटेरियंस इन पंजाब, तो वहाँ पे फिश वाज द ओनली ऑप्शन, फिश एंड नॉन वेज वाज द ऑप्शन। तो हमेशा मेस में फिश रहता था। एक दिन मैं कैजुअलिटी का ड्यूटी करके आफ्टर 36 आवर्स आई केम एट द नाइट, तो आई वाज सर्चिंग फॉर फूड इन द मेस। तो मैंने देखा कुछ भी नहीं था अवेलेबल, सिर्फ राइस और फिश और सांभर ही बचा था। तो मैंने, इट वाज लाइक अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कि हाँ अभी फिश जो मिल रहा है खा जो लो। मिल रहा है तो खा लो। तो मैंने फिश पहली बार ट्राई किया, पहली बार लाइफ में। आई लाइक द टेस्ट। समवेयर आई थॉट ओ फिश भी अच्छा चीज़ है, डिफरेंट टेस्ट है लाइफ में ट्राई करने के लिए। नॉन वेज टर्न हो गया। हाँ, तो इट वाज लाइक ओ देन। बट पंजाबी एज अ वेज आई हैव नॉट हर्ड ऑफ No, दैट। we used to have a chicken, अच्छा। but very occasionally, once in a month or something. But we don't used to cook at home. So my father used to get it from hotels. अच्छा अच्छा, तो मतलब It आप was- लोग चिकन वाले थे, लेकिन अभी आपने फिश हाँ, ट्राई करी। कुकर वाले हाँ, थे, कुकर। कुकर वाले थे। तो एक साल ट्रिवेंड्रम में इतना बुरा नहीं Yeah, it बीता। was not slowly I started making the लेकिन फिर जब friends. घर गए तो फिर वो वापस यादें शुरू हो गई हाँ, कि घर का खाना। घर का खाना। And then what happened? How did you meet, inverted commas, your husband? Yeah, so it was, I think so I was supposed to go on 31st of December 2002 that time. I still remember the days. I'm very good in remembering the dates. And तो मैंने पापा को बोला I want to spend New Year with you and I want to cancel my train tickets. I want to go on 3rd of Jan. He told okay, तत्काल में टिकट बुक करवा दिया। कहते ठीक है 3rd of Jan को चलते हैं। तो 3rd Jan को when I was boarding the train, तो that time again that emotional moment came, parents जाना, फिर से वही खाना खाना and all that things. मन नहीं करता है, लगता मन छोड़ नहीं दो करता है। MBBS। Yeah, that's one thing. Obviously, and when I was sitting in the train, that was a sleeper class, and my parents were outside the train, and that window is there. Sleeper class का window के बीच में एक और वो होता है, so it will get stuck there in between. खिड़की की होती है, तो वो stuck हो जाती है. I was looking at my parents and I was trying to close the window कि मेरे को बहुत रोना आ रहा था कि they should not see my tears, but वो नहीं बंद हो रही थी खिड़की, वो कहीं पे अटक गई थी, and train started moving. So there was a bunch of other people around me, college के लोग थे, boys and girls, they were sitting around me. So one guy was sitting next to me. So he just, उसने playfully ऐसे पूछा, मैम कहाँ से हो आप? Then I was already in the different mood. First I gave him very annoyed look and everything. Then he asked, मैंने कहा मैं पंजाब से हूँ। क्यों? पंजाब की लस्सी पी के आपसे खिड़की नहीं बंद हो रही? I was like, I was about to slap that guy. Then he get up and he just closed that window for me. Then he just little bit of touch, his arm touched my arm. तो वो जो So I spark just, हुआ। एक spark हुआ। Then I looked at him. Then he told, where are you going? मैंने बोला मैं ट्रिवेंड्रम जा रही हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला मैं भी ट्रिवेंड्रम जा रहा हूँ। I was like okay, it was nothing, no emotions or something like that. He was just sitting. तो वैसे ही खराब था। Yeah, so he was just sitting and chatting to his friends and all. He was actually in the AC, so he just came to meet his friends in the sleeper class. You didn't ask him कि who are you and what do you do in Trivandrum? ये सब नहीं nothing. पूछा। After some time he came again, that he was talking to his friends. Then he told, I am doing hotel management in Trivandrum, Kovalam. हमारा वहाँ पे फन एंड फूड फेस्टिवल होता है, जहाँ पे हम स्टॉल्स लगाते हैं खाने का एंड ऑल दैट. वी इनवाइट पीपल ऑल ओवर द ट्रिवेंड्रम, दे कम एंड सी आवर फेस्ट एंड वी डिस्प्ले आवर फूड और समथिंग लाइक दैट. Will you be you want to be a part of that fest? तुम आना चाहोगी उसमें? And you can bring your own friends also. तो मेरे friends भी बैठे थे, तो मेरे friends were very excited. खाना again. So that is the food. और मेरे को भी लगा यार हाँ अच्छा है, खाने के लिए तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं. Especially in Trivandrum place where you खाना मिल रहा है. यहाँ पे कोई खाने के लिए invite कर रहा है. मैं कहा यार we will come. तो उसने कहा कि ठीक है, I will give you the tickets. और उसका मेन मोटिव था टिकट्स देने का.
ताकि she should bring all the peoples from there and I can sell the tickets also. So motives was different. Mine was a food and he was to उसका तो टिकट बेचना. उसका टिकट बेचना था अपना. तो when I was getting down from the train after 3 days, then he came again to me. So उस टाइम पे वो नोकिया का 3310 वाला जो मोटा बड़ा सा हाथी जैसा फोन आता हाथी था. जैसा फोन था, वो था हम दोनों के पास. Then he came and then he told, okay, can you give me your number? तो देन आई थॉट अ लिटिल बिट. तो फिर मैंने उसका फ़ोन खुद ही खींच के मैंने अपना नंबर ऐड कर दिया. मेरे को खाना याद आ रहा था समवेयर इन द बैक ऑफ माय माइंड कि खाना नहीं जाना है, तो इसलिए नंबर दे दो, मेरे को बुला लो बस खाने के लिए. So and after 3-4 days one phone came from the unknown number. I in the half ring only I picked that phone. I was like so much खाने का शौक. I was like so much, but खाने के साथ I think so there was something else. I was like talking to that person. Oh, some curiosity था उससे बात करने का मेरा, उसको और जानने का. उसको और जानने का. तो हाफ कॉल पे उसका कॉल उठाया मैंने एंड ही कॉल एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग. तो उसने बोला कि कल फ्री हो, कल मिल सकते हैं क्या? हाँ बोल दिया इमीडिएटली. नहीं. फिर मुझे डाउट हुआ कि नहीं यार, ये ट्रेन में मिला था लड़का, माइट बी हिज इंटेंशंस आर समथिंग एल्स, व्हाई ही इज कॉलिंग मी फॉर मीटिंग एकदम से, क्योंकि इसका इंटेंशन तो सिर्फ टिकट तक का था. तो आई टोल्ड नो आई कांट कम, सॉरी. ही टोल्ड इट्स योर विश, आई विल बी वेटिंग टिल नाइट. मैं सुबह 8 बजे आऊँगा, मैं रात के 8 बजे तक वहाँ बैठ के तुम्हारा इंतज़ार करूँगा. तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें आना है, इट्स ऑल योर विश, आई एम नॉट फोर्सिंग यू. सो रात भर मैं सोचती रही, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ. तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो मैंने 10 बजे ही टोल्ड ही विल कम बाय 8 o'clock. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने सोचा कि जाके देखती हूँ कि वो सच में है या नहीं. नहीं है तो कुछ नहीं, कॉफ़ी पी के आ जाएंगे, इसमें क्या है. सो 10 o'clock I called him and told I am coming. So he How was his reaction? He was told okay come, I am here only. So he told me the location and where we have to go. उस टाइम पे तो ऊबर या वैसा ओला कुछ भी नहीं होता था, ऑटोज ही रहते थे. तो मैं गई वहाँ पे एंड देन ही वाज, आई सर्च पर कोई नहीं दिखा मुझे थोड़ी देर तक ले. फिर देन आई सॉ वन पर्सन वाज सिटिंग इनसाइड विद कॉफी इन द कॉर्नर ऑफ दैट कैफे. So then that was the first time you met him as a person. As a person. And how did you find him that time? And कितना समय बिताया आपने उनके साथ? So that was first time. तो बहुत एंग्जाइटी और वो बहुत सारा इमोशंस था कि कैसे बात करना है. वी वर साइलेंट फॉर सम टाइम बट आई थिंक सो आई वाज फाइंडिंग अ कंफर्ट इन हिज कंपनी. कि एक तो मेरे वहाँ पे कोई फ्रेंड्स नहीं थे ज़्यादा, द हुम आई कैन स्पीक विद इन हिंदी या जिनसे मैं बात कर सकूँ. कहाँ से? आपने नाम नहीं बताया मुझे अभी तक. सो हिज नेम इज़ तरुण एंड ही इज़ फ्रॉम हरिद्वार. चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस थी हमारे में. हमने कभी आज तक एक दूसरे को ये नहीं कहा कि विल यू मैरी मी और विल कभी नहीं बोला, ऐसा कभी नहीं बोला. फीलिंग था कि हाँ ये हमारे साथ, हम इसके साथ आपस में रह सकते हैं. तो और वो भी नहीं सोचा था कि शादी करनी है. इट वाज जस्ट थिंग दैट ओके वी आर जस्ट लाइकिंग ईच अदर्स कंपनी एंड वी आर जस्ट गोइंग अराउंड. वो बॉम्बे चले गए, तरुण बॉम्बे चले गए. उसके बाद आपने अपना MBBS खत्म किया, फिर ही केम बैक. नो, इन बिटवीन ओनली आई वाज, आई टोल्ड आई कांट स्टडी. मेरा दिमाग नहीं लग रहा था. आई ऑलवेज कीप क्राइंग एंड ऑल दैट. एक तो होम सिक था, पर अगर आपको होम सिकनेस के बीच में कोई और ऑप्शन मिल जाता है टू फाइंड द कंफर्ट, right? And then you can divert your mind there. So I think so my mind got diverted from home to him. So there was the one कि रास्ता है कि अभी पापा मम्मी को कम फ़ोन और इसको ज़्यादा फ़ोन, इससे ज़्यादा बात करना. तो he left Bombay and came to Trivandrum. Yeah, he came to अपने ड्रीम्स छोड़ के. अपने ड्रीम्स छोड़ के he came to Cochin. Cochin, there was, he told I'm getting very small job. I told it's okay for 1 or 2 years. You do that job and after that we'll find the ways and you can make the career later on. But please be with me till I finish my MBBS. And he agreed? He agreed. He came. बहुत प्यार करते थे. पता है. Yes, then what happened? He came to Cochin. He started working there. Yeah. So and I used to jump from Trivandrum to Cochin, train लेके weekends में जब भी छुट्टी मिलती थी मुझे, जब भी टाइम मिलता था, so used to come to Trivandrum and all that things. So you stayed with him over the weekend and then you went back. Yeah. So you completed your MBBS and you became close as a couple. Yeah. Wow. उसके बाद क्या हुआ? 5 साल हो गए हमारे MBBS को. घर जाने का टाइम हो गया. इंटर्नशिप भी वहीं करी थी ट्रिवेंड्रम में? इंटर्नशिप भी वहीं पे किया था. तो उसके बाद
उसके बाद में बिफोर माई इंटर्नशिप ही केम टू बैंगलोर, सो ही थॉट ओके नाउ इज द टाइम टू मूव, कि मैं कुछ अपना कैरियर के बारे में he moved to Bangalore. कि एनीवेज यू विल फिनिश योर इंटर्नशिप इन 1 year, दैट टाइम 1 year तो सर्वाइव कर ही सकती हूँ। मतलब सोचा क्या था बैंगलोर आके, फिर मतलब what was his plans कि he'll come to Bangalore and then he'll talk to your parents and both of you will get married, ऐसा था? वैसा कुछ हमने प्लान आउट कुछ भी नहीं किया था प्रीति, सो कि हम लोग साथ ही रहेंगे, वी वर इन टच। सो देन माई ट्रेन शिफ्टेड फ्रॉम ट्रिवेंड्रम टू कोचिन टू ट्रिवेंड्रम टू बैंगलोर, so now I used to come from bus, overnight buses से ट्रिवेंड्रम टू बैंगलोर, but I was the only one who used to travel. He was like okay, तो वो नहीं आता था? he doesn't like traveling too much. I am into more of a traveling, so I used to keep traveling from one place to another place to meet and to survive my फिर क्या हुआ? relationship. And after that, once my internship was about to finish, so before internship only I told my parents about him. I just wanted to give a hint of him to my parents. बस उसके Back to stop your studies in middle of that, and I told please don't tell it to father. Then she told it to father also. My father also got, my father तो 6'2" height and he's like one army man and बाप रे। So जब पापा को पता चला तो पापा ने तो खूब डांट लगाई होगी। बहुत ज़्यादा फिर क्या हुआ? देन मैं बहुत डर गई थी कि पता नहीं क्या होगा या क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, पर मुझे समझ आ गया था कि नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, दे विल नेवर एग्री फॉर हिम। जो भी करना है अभी स्टैंड या तो मुझे करना है, और अदरवाइज आई हैव टू लीव द थिंग्स, और आई हैव टू लीव हिम, एंड जो पापा मम्मी का ऑप्शंस है उसके साथ। तो क्या सोचा फिर, क्या फैसला लिया? तो एक बहुत फनी इंसिडेंट है। हाँ। तो उसी दिन डांट के बाद अगले दिन मेरा ट्रेन था, तो तरुण वाज आल्सो ट्रैवलिंग फ्रॉम हरिद्वार टू द इन द सेम ट्रेन एंड आई वाज आल्सो इन द सेम ट्रेन। माय पेरेंट्स केम टू ड्रॉप मी टू द स्टेशन। तो पापा मुझे बोल रहे थे हाँ, उस लड़के से नहीं मिलेगी ना, पक्का देख लेना, नहीं तो फिर वापस बुला लूँगा। एंड ही वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी लाइक यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। And my father is next to me and he's saying me all this, and I'm looking into his eyes. मैं कहा नहीं, कभी नहीं मिलूंगी। So he was not aware he is the same guy. Then तरुण ने भी बात नहीं करी पापा से? he was like, after seeing at him, because he's very बड़े लंबे चौड़े, एक हाथ पड़ जाए तो you will fly away. तो तरुण ने कहा नहीं भाई, He was also scared. He was just sitting like that and he was observing. Then he observed for first time my parents, the way, the nature, the everything. He understood. He's very mature guy. Tarun is very mature guy. I can't sense the things, but he can sense the things very clearly. मैं बहुत innocent और बुद्धू सी थी तब, मेरे को नहीं समझ आता था। डायरेक्ट चीज़ें बोलोगे तो समझ आएंगी। तो तरुण ने देख के ही पहचान लिया, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। उसने जैसी ट्रेन स्टार्ट हुआ कहता नहीं, ये कभी नहीं मानने वाले, मैंने देख लिया आज। So either we have to do something or we have to run away or something like that. इतनी दूर तक सोच लिया? उसने सोचा, तरुण ने सोचा ऐसा। और तुमने? मेरे को तो दिमाग में कहीं ना कहीं पढ़ाई ही था, मुझे सिर्फ पीजी करना था। एमबीबीएस के बाद मेरा इसमें दिमाग नहीं था कि हाँ शादी करना है, भागना है या But you wanted तरुण, but you wanted PG also. पीजी आल्सो आई वांटेड, मेरे को सब चाहिए लाइफ में। हाँ। पढ़ाई भी चाहिए, तरुण भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि आई विल कॉम्प्रोमाइज माई स्टडीज बिकॉज ऑफ वन पर्सन, वन रिलेशनशिप या शादी के लिए। शादी तो है, डेफिनेटली करना ही है, बट पहले कुछ बन जाए लाइफ में, उसके बाद। तो मेरा फोकस उसमें क्लियर था। तो देन वी वेंट एंड आफ्टर 1 year when my internship was about to finish in 2019, January 2019, 26th of January 2000, डेट याद है? yeah, not 2019, sorry, it was 2008, 2009. अच्छा, I still- 2009. yeah, not 19, 2009.
सो जनवरी 2009 तो तरुण का फ़ोन आया मेरे पास, ही वॉज इन बैंगलोर, कहता क्या सोचा है लाइफ में आगे करने का। मैं कहा कुछ नहीं, मैं दिल्ली में जाऊंगी, वहाँ पे एक डैम्स करके इंस्टीट्यूट है, दिल्ली हाँ। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वहाँ पे पापा मैं कोचिंग करेंगे। कोचिंग करूँगी, जैसे मैंने एमबीबीएस के लिए पढ़ाई किया था। आई वांट टू गेट द पीजी सीट, वेरी गुड पीजी सीट, आई वांट टू बिकम पीडियाट्रिस्ट, बिकॉज अभी मैंने सोच लिया था ठीक है अभी एमबीबीएस कर लिया, अब तो डॉक्टर ही बनना है, अब इसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं है, डॉक्टर बनने के बाद ही कुछ सोचेंगे कुछ बनना है। तो मैंने कहा मुझे पीडियाट्रिशियन बनना है, बहुत अच्छा, लाइक माई फादर, आई वॉन्ट टू सर्व माई कम्युनिटी एंड आई वॉन्ट टू गेट, रियली वॉन्ट टू गेट द सीट। फिर क्या हुआ? देन तरुण ने सोचा, तरुण ने डायलॉग मारा, एक सलाम नमस्ते मूवी का डायलॉग है, देन दैट टाइम, उस टाइम पे वो मूवीज बहुत आई थी, सलाम नमस्ते, चलते चलते, सैफ अली खान और प्रीति जिंटा की, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तुम परफेक्ट नहीं हो, हमारी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, पर मेरे लिए हमेशा तुम परफेक्ट रहोगी। My God, So that dialogue, yeah, that dialogue still I remember. वो डायलॉग भी याद है। या मुझे अभी तक याद है वो डायलॉग, सो समवेयर आई गॉट इमोशनल। देन वन मोर डायलॉग वाज देयर इन दैट मूवी की, तुम 40 साल के बाद अब जब एक बुढ़े खुसर डॉक्टर के साथ सो रही होगी, पेट फुला के सो रहा होगा वो, तब सोचोगी हाय मैंने उस लड़के के साथ क्यों नहीं शादी किया। सो दीज टू डायलॉग्स वाज, डायलॉग में फिसल गई। नॉट फिसल गई बट इट मेड मी अ थॉट। उसने कहा कि आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फॉर द स्टडीज, यू गो हैड विद योर स्टडीज, फर्स्ट यू कम टू बैंगलोर, मीट मी with your all things to come over here rather than going directly to the Haryana. अच्छा, पहले वहां मिलके फिर जाओ। हाँ, we will decide कि क्या करना है आगे लाइफ में। नहीं, मैं तो ऐसे ही गई थी, I came casually because anyways my internship was finished, now I have to move to Delhi. तो मेरा दिल्ली का भी टिकट बुक था, तो दिल्ली फ्रॉम ट्रिवेंड्रम टू दिल्ली का टिकट बुक था, तो वो मैंने कैंसिल करवा के, तो मैंने ट्रिवेंड्रम टू बैंगलोर का टिकट बुक करवा के, आई थॉट ओके एक जो है 2 दिन के बाद चले जाऊंगी बैंगलोर, उससे मिल के जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो फिर पता नहीं कब मिलूंगी उससे मैं। राइट। तो मैंने बैंगलोर आई मैं, तो बैंगलोर में फिर तरुण, आई केम विद ऑल द थिंग्स, ऑल मेरा ट्रंक में पूरा बुक्स, इतना सारा सामान, एक ऑटो पूरा, इट वाज ओवरफ्लोइंग विद माय थिंग्स। व्हेन तरुण केम टू रिसीव मी, कहता ये क्या है, मुझे लगा तुम अकेले आओगे, यू केम भी लेके आई हो पूरा का पूरा ये सामान ऑटो के, ऑटो में भी सामान नहीं आ रहा था वो पूरा। सो मैंने कहा अभी आई केम, आई हैव टू एनीवेज मूव विद द थिंग्स, बिकॉज हॉस्टल तो छोड़ना ही था मुझे। सो इट वाज 27th of January 2009। तो देन ही टोल्ड, एक काम करते हैं, तुम शादी कर लो ताकि तुम्हारे पापा फिर शादी ना करवा पाए, और फिर तुम चले जाना उसके बाद। ये सुन के क्या हुआ, जमीन पैरों तले जमीन खिसक गई? या देन आई वाज लाइक नो, इट वाज लाइक नहीं। फिर वो साथिया मूवी वाला, उस टाइम पे वो दौर था मूवियों का, तो वही उसमें भी देखना बहुत अच्छा लगता है। उसमें भी रानी मुखर्जी, शी इज अ डॉक्टर एंड शी गेट्स मैरिड टू विवेक ओबराय, उसमें भी सेम था कि तुम शादी करके, एंड फिर उसके बाद वो घर पे आती है, एंड हाँ, तो सब ठीक हो जाता है। हाँ, सब ठीक हो जाता, तो मुझे लगा ठीक है वैसे ही करेंगे हम भी, शादी करके मैं भी घर चली जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा वैसे ही। तो देन वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर टेम्पल्स, और वेयर उन 2 दिनों में, जब नेक्स्ट डे तो ट्रेन भी थी ना 2 दिन बाद? नहीं, फिर मैंने ट्रेन कैंसिल करवा दी थी अभी। अच्छा। अभी ट्रेन वाज कैंसल। अच्छा, तो वो तो तत्काल में भी टिकट, पापा को पता था कि तुम कब आ रहे हो, टाइम वाइम पता नहीं था? वैसा नहीं बोला, मैं कहा पापा 2-3 दिन में आती हूँ, ऐसा टाइम लाइन, तो उनकी तरफ से कोई ऐसा बात नहीं कि वो लोग ढूंढ रहे हैं या कुछ कर ऐसा रहे हैं? कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ? सो देन इन बैंगलोर वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर थिंग्स कि जहाँ पे शादी का सर्टिफिकेट मिल सके, जहाँ पे हमें पता लगे कि हमारा शादी हुआ है, कि टू प्रूव। और तुम दोनों ही थे खाली? हम दोनों ही थे काफ़ी खाली, कोई नहीं था। मैं हस्बैंड यूज्ड टू स्टे इन विद समवन फ्रेंड्स इन पीजी, तो घर भी नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं था, तो मैं भी वहीं पे सामान लेके पूरा उसी पीजी में आई थी। सो वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर organizations who can give us the registrations or some certificate for the marriage. बहुत ढूंढा, 1 दिन 2 दिन, some organization told नहीं हम लोग शादी कराएंगे पर आप अपने पेरेंट्स को साथ लेके आइए। then we ran away, like अगर पेरेंट्स को ही लेके आना था तो हम लोग क्यों आते। तो then RS मार्च मंदिर में गए हम लोग, हमें सुना था कि RS मार्च का शादी वैलिड होता है, and they give you certificate also. So I think so in RS मार्च मंदिर विवीपुरम और वसवनगुड़ी यहाँ पे है एक टेम्पल। तो there we went and they told okay इतना लगेगा and you will get the certificate. We were happy, okay, so at least we'll get the proof of our marriage. दिमाग सेट कर लिया था कि शादी करनी? You were convinced? Yeah, I was convinced. Okay. It was not like a forceful, it was like You were शादी के convinced. बाद मुझे लगा था कि हाँ मैं वापस जाऊंगी,
हाँ, मतलब मुझे घर तो जाऊं। जाना है, तो इसलिए इट वाज नॉट अ बिग हम्म। थिंग। ओके, शादी तो करनी ही थी, इसी हम्म। लड़के से करनी थी, चाहे हम्म। बिकॉज इट वाज ऑलमोस्ट नाउ 5 years I Right. was with And him, you were 4 in to a 5. committed We relationship were and in you liked committed each other. relationship, and there was nothing like we don't like each other or Yeah. something And he was a like that. dedicated person. He's only asking you कि शादी कर लो, करना ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, मस्ती करी और चल दिए चल टाइप्स। दिए, हाँ, वैसा नहीं था। फिर तो क्या हुआ? तो शादी हम 27th जनवरी, 28th जनवरी एंड 28th से हमने फर्स्ट और सेकंड तक, फर्स्ट को वी गॉट दिस, 1st of Feb वी गॉट दिस मंदिर, एंड माय हस्बैंड टोल्ड ओके विल गेट मैरिड। देन उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। कहता है एक दिन तो बहुत कम है, कहाँ से नए कपड़े। उस टाइम पे इतना भी दिमाग नहीं था, ये मिंत्रा वगैरह कुछ भी नहीं था हाँ, कि तब कहाँ था? ऑनलाइन ऑर्डर कर लो या एकदम से जाके तो जाके स्टिच भी खरीदे। करवाना है, तो टेलर बोल रहा था कि नहीं, कम से कम 3-4 दिन लगेंगे स्टिच करने के लिए। एंड ही टोल्ड यू हैव एनीथिंग रेड दैट यू कैन वियर, तुम्हारे पुराने कपड़ों में से। मैंने कहा हाँ, एक रेड सूट तो है मेरे पास। तो कहता मेरे पास भी एक वाइट कुर्ता है, देन आई विल वियर दैट। तो मैंने कहा ओके। एंड फिर उसके बाद वी गॉट द फ्लावर्स, जो पंडित ने लिस्ट दिया था, जयमाला लेके आना है, फ्लावर्स लेके आना है। फिर साथ में कहता, मैंने कहा मुझे मेहंदी भी लगानी है, शादी बिना मेहंदी के शादी नहीं करूँगी मैं। सारी चीजें वो करनी है। पंजाबी वाली, पूरा पंजाबियों में तो पूरा वेडिंग वी विल बी हैविंग पूरा लाइक इट इज गलीचे लाइक वलीचे सब पहनते, पर करा? तो नहीं। फिर मेहंदी में पार्लर में गई। आई वाज लाइक सो स्केयर्ड फ्रॉम इनसाइड आल्सो। पार्लर वाली कहती किसकी शादी के लिए मेहंदी लगा रहे हो? मैंने कहा नहीं, मेरी फ्रेंड की है, इतनी तक मेहंदी लगा दो मुझे। आई वाज लाइक कुड नॉट टेल कि मेरी शादी की मेहंदी लगानी है। एंड इन मीन वाइल ही वाज सर्चिंग फॉर हाउसेज कि कहाँ पे रहेंगे हम, कोई रेंट पे घर मिल जाए तो। एंड व्हेन आई वाज अप्लाइंग मेहंदी, देन ही कॉल्ड मी कि एक घर मिला है, वहाँ पे हम कल शिफ्ट हो जाएंगे। देन ही केम। तो मॉर्निंग में हम खुद दोनों तैयार होकर अपनी शादी के लिए जा रहे हैं। बाइक पे ही वाज अ बाइक दैट टाइम। तो जयमाला रास्ते में फ्लावर्स, वो साइड फ्लावर्स बैठे रहते हैं फ्लावर्स वाले, तो उनसे जयमाला लिया, फ्लावर्स लिया, थोड़ा मिठाई का डब्बा लिया एक, दोनों खाली। दैट्स इट। सो दैट्स व्हाट वो पंडित ने जो लिस्ट लिखा था, जो शादी, लेके फिर वहाँ जाके शादी कर ली। फिर वहाँ गए तरुण, दे टोल्ड वी नीड 4 to 5 विटनेस। तो माय हस्बैंड टोल्ड ओके, मैं ऑफिस के 2-4 फ्रेंड्स हैं, उनको साथ लेके आ सकता हूँ एज अ विटनेस। सो एंड वहाँ पे गए तो पंडित वाज लाइक वी गेव ऑल द थिंग्स एंड वी सॉ वन, सिर्फ एक एम्प्टी हॉल, 3-4 वो तरुण के दोस्त थे, हम दोनों थे और एक पंडित था। एंड दैट टू ही वाज स्पीकिंग इन इंग्लिश। पर हम लोग जब पंजाबी में होते तो मेरे को लगता था कि पंजाबी में चैंट करे या हिंदी में चैंट करे हमारी। सो मैंने बोला तरुण को, उसको बोलो हिंदी में बोलने के लिए, क्योंकि शादी तो एक बार ही होती है, तो फेरे तो एटलीस्ट हमारी लैंग्वेज में होने चाहिए। कहता नो, ही डजंट नो हिंदी। मैं कहा ओके, देन इंग्लिश इज ओके, शादी होनी चाहिए। सो देन वी गॉट मैरिड। सो दैट विद वेरी फ्यू फ्रेंड्स, 3 or 4 फ्रेंड्स। उसके बाद क्या हुआ? इमीडिएटली शादी करने के बाद व्हाट डिड यू फील? या सो शादी के बाद एकदम से तरुण कहता है नाउ यू गो एंड टेल योर फादर दैट यू गॉट मैरिड। मैं कहा नो, आई विल नॉट टेल, आई गॉट स्केयर्ड। नहीं, कहता वो सामने एसटीडी बूथ है, तो जाके कॉल कर। एसटीडी होता था, क्योंकि मेरे फ़ोन से तो फिर पता लग जाएगा, मैं कॉल करी। मैंने कहा मैं अपने फ़ोन से नहीं करूँगी, तो एसटीडी बूथ पे जाकर कॉल करके बोल दो कि यू गॉट मैरिड टू हिम। आई वेंट देयर विद वेरी, कहता आई एम स्टैंडिंग ऑपोजिट द रोड। मैं कहा नो, यू कम विद मी। कहता नहीं, अगर मैं साथ में करूँगा तो तू बोल नहीं पाएगी। कहता मैं सामने खड़ा हूँ तेरे, तो बोल देना। Then I called my father and told पापा मैंने शादी कर लिया। Then I just kept the phone like that. बस इतना ही बोल के? इतने ही बोला, थोड़ा सा पापा का इमोशन थे ना, मतलब he was just silent and then I just kept the phone and ran away to him. I told him कि मैंने शादी कर लिया है। फिर क्या हुआ? Then the actual drama started actually. हाँ, तो They don't know that I was in Bangalore, so they went to Trivandrum. अच्छा, वो लोग तब वहाँ से उसी वक्त चल दिए वहाँ से? I think so, yeah. उन्होंने तुम्हें फोन नहीं किया? They tried but I did not pick the phone. I got so scared. So they went to Trivandrum. Yeah, they went to Trivandrum. And meanwhile, what you guys were establishing your house? Yeah, we came to we were in the friend's house. We have not shifted to that new house till that time. So night जब हमारा शादी जैसी खत्म हुआ, हमने तो शादी का खाना भी नहीं खाया अपने लिए। शादी का लड्डू, शादी का मिठाई भी नहीं खाया, बस शादी कर ली और घर में चले गए। या so शादी कर लिया। उसके बाद शाम को फिर कॉल आया। Then they went to Trivandrum. तो Trivandrum से फिर पापा का, फिर they were continuously calling me. My husband told okay, pick and talk to them. And तो my पापा was like in very furious voice, कहाँ हो तुम? हम यहाँ Trivandrum में हैं, मम्मा ICU में admit है, and all that filmy drama. And after that, when I came, I told them I'm in Bangalore. I told them the location, but I don't know. I was like so stupid. And you were already settled in your house now.
Yeah, I was in the PG. We were about to move to new अपनी house. लोकेशन आपने बस बताया। आपने मैंने सिर्फ ये बोला था कि मैं बैंगलोर में हूँ. So they came to Bangalore from Trivandrum. So then they came to know my location. They came to my house. First, तरुण भी yeah, he was also there. फिर क्या हुआ? My father slapped him. हो Yeah, he slapped him. हे भगवान। But my husband was Tarun was just looking at them, just kept quiet because he फिर वो- knows what. फिर वो लोग क्या किए मतलब? Then they tried to force me to take with them. They told to come back. हम तुम्हारा शादी अच्छे से कराएंगे. And my husband can sense the things कि वो झूठ बोल रहे हैं. वो सिर्फ तुम्हें लेके जाना चाहते हैं कि forceful है. I agreed also. मैंने कहा ठीक है चलते हूँ. मैं तरुण से भी बोला जाने में क्या प्रॉब्लम है. जाते हैं तुम वहाँ पे आके फिर अच्छे से शादी करेंगे. But no, he know. अगर मेरे को एक बार जाने दिया तो फिर मैं वापस नहीं आऊँगी कभी. He knew that. He knew that. He knew that. So you didn't go. No. Then he told no, you are not going anywhere now. And he told them to leave. No, we don't told them. They started crying. I saw my parents first time crying in front of me. Obviously, somewhere I thought I was also wrong. I should not have taken this step at this point. But I did not go with them. You Though stood I was by. crying, he was crying. They all were crying. They told, "I'm there for you." My father also told, "Anything you need, anytime, I'm there for you. Please come to us. We are still your parents." So they left. They left like that. तो इतने दिन में क्या किया? जॉब ढूंढा, क्या किया? I started studying for the PG. I think so. That time I was enrolled here in the IAMS. तो That यहाँ पर time पढ़ाई हो रही थी, तरुण जॉब कर रहा था। Tarun job कर रहा था and I was studying. But yeah, I was little bit Disturbed. disturbed. And I have never seen the hardships in my life, like this type of hardships. Obviously, for the studies, I have seen the hardships, but financial hardships or at my own, how I have to do the things, how I have to go, how I have to select for तो my ये अभी school. करा था जब तरुण के साथ रहे तो देखा आपने खुद Yeah. जाते थे, Yeah. कोचिंग कर रहे कर थे रही थी, yeah. और इसके बीच में you were torn between the love for Tarun and your parents. Yeah. So once they came when Tarun was not at home. कि जब भी हम आते हैं तो ये लड़का हमेशा हमारे आगे आ जाता है. ये इसको नहीं लेके जाने देता है. तरुण को पता ही नहीं था। नहीं, he was in office at I think so it was around 2 o'clock. ठीक है। And I was alone at house and I was studying and my mother just peeped into the window suddenly because they know the address now and she told बब्बल क्या कर रही है? मैं आई हूँ देखो दरवाज़ा खोलो. She told me like that. I was like obviously emotional stage में तो थी. Did not think कुछ नहीं सोचा. मैंने दरवाज़ा खोल लिया. I just opened the door. But with my mother, when I saw there were around 10 to 15 relatives of mine. Oh my God. With them, they have come. I was like shocked. So first they took my phone. They just kept my phone, and then they started searching my whole house. They started searching for my certificates. Started searching for my all that valuables कहाँ पे रखे हैं, and they kept with them. Then they told, now you come with us. I told where I am not. Let me talk to Tarun first. Give me phone. Then they told no, we are not going to give you anything. You have to come. जबरदस्ती ले गए? जबरदस्ती लेके गए मेरे को. So they snatched me. They locked the door and they put the key on the window and put a note. We are taking her. So and when they were taking me down, so many neighbors and everyone, they saw what is happening. Everything is. So they told, please don't interfere. We are parents. So obviously no one will interfere if you tell that parents and it's a private matter. Then they took me. The Tata Sumo was there parked down with. And they took me there in that car. तो मेरे को I was very बहुत डर लग रहा था क्या करूँ मैं ऐसे में. तो मैंने सोचा चिल्लाती हूँ मैं. When I saw the traffic police तो मैंने चिल्लाने की कोशिश की हेल्प करके. So then they rolled the windows तो AC ऑन करने के लिए बोला उन्होंने. कहाँ ले गए थे? तो then they took me to Salem. Salem में मेरे कोई relatives रहते थे. So then they gave me phone in the Salem. Then you can talk to him now. So when I talked to him, he told me कोई घबराने वाली बात नहीं है. मैं पुलिस स्टेशन में हूँ और something is there to sort it out whatever it is. And then police told that your marriage is not registered. We are not taking it as a valid certificate for रजिस्ट्रेशन registration. नहीं कराई थी खाली That is the only RS mark. We were like not aware. We were very innocent that time, right? Yeah. That we thought, okay, this is the only thing valid for us. And I was like, क्या करना है? I told I will run away now only. He told no, it's not safe at night. You don't run away. तो कल देखते हैं क्या करना है. So then next day when they were booking the flight tickets from Chennai,
So from Chennai to Delhi, they were looking for the tickets. Your parents, you were there Yeah, with them. my parents. And I also overheard they will transport me to another country or US or something like that. So मैंने तभी माइंड बना लिया था कुछ तो करना है मुझे अभी नेक्स्ट एक आर में. So I always had some cash with me, around 1,000. I always used to keep it with me. So they left me alone in that car. All of them went for the booking the tickets. Yeah. So that time I thought, what should I do? Then I thought, oh, Don't tell me. I have to run away. Oh my God. I just did not. मेरे को उस टाइम पे कुछ नहीं सोचा प्रीति. I just had a तरुण face in front of me कि नहीं मुझे इससे मिलना है दोबारा. कैसे मिलूंगी वो अभी मेरे को ही करना है. तो फिर I ran at my maximum speed from that car. कोई पीछे भागा नहीं? I don't know. I did not. मैंने पीछे नहीं देखा. मैंने कहा पीछे नहीं देखूंगी मैं. मेरे को भागना है. So then one auto was going from where I was running. मैंने उसको रोका, भैया जल्दी चलो. कहता कहाँ जा रहा है मैडम? मैं कहा अभी यहाँ से चलो, मैं बताती हूँ रास्ते में, तुम ऑटो भगाओ यहाँ से. Then he told me, मैंने कहा स्टेशन चलो, रेलवे स्टेशन. Then once I reached the railway station, I called Tarun. So I told Tarun I came. Tarun was also disturbed, like how happened this, like how you came, because he was also scared for my safety and how the things, because he doesn't know वो पीछे आके कुछ भी कर सकते थे and they can hold me and take me away. Then I told no, I am not going. He told you go back to them because we never know, they will make a strong case against us, or police will come in search of us or something like that. I said, no, I'm not going back. I am here now. You tell me where I have to come. From the station only, I called from the STD booth. And I have just 500 rupees left with me because 500 rupees auto wala le gaya. And I don't have a money to travel in the AC or sleeper also. Then he told, जो भी ट्रेन यहाँ से अभी स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारे सामने कोई भी ट्रेन है उसमें तुम चढ़ जाओ और मुझे बताना कौन सा ट्रेन है. So train was going to Hyderabad. So I don't have enough money, so I just jumped into the general compartment. So general compartment, first time I have experienced all the people, The kamuki and all that things, and everything was going. So then he booked the flight from Bangalore to Hyderabad, and I reached Hyderabad on the train, and he came also to the station platform. And then we both met after, like, it was like, so I never thought I will meet him again in his life. We were just holding each other for at least 10 minutes and we were just crying there in the platform and we were just shivering. So they know now that this girl, कितना भी कर ले हम, अब ये उसके नहीं छोड़ेगी. नहीं छोड़ेगी. Then did you try to concentrate on your professional journey now? Yeah, so after that, my daughter was born after 5 years. Oh, you conceived after that? Yeah, so you conceived immediately? Not immediately, but we gave a time to ourselves to settle in our lives. जब motherhood में enter करे, तो क्या हमने छोड़ दिया अपना dream आगे प्रोफेशनल लाइफ का, कि क्या थॉट था दिमाग में कि मुझे concentrate motherhood पे करना है, कि मैं motherhood के साथ प्रोफेशन
कितने साल पहले ये बात है? So it is I think so in 2017, 2016 to 17 that अच्छा, year. अभी that आपको is- अराउंड 6-7 साल हो गए, मतलब 8 साल हो गए काम काम करते हुए, करते हुए। आफ्टर परीज 4 Yeah, years. yeah, yeah. So after that I did my course. I have done the family medicine from CMC Vellore. तो पढ़ाई नहीं छोड़ी हमने, नहीं, पढ़ाई करेंगे नहीं हम जरूर। छोड़ी। पढ़ाई भी करेंगे, फैमिली भी देखेंगे और Yes, खुश भी रहेंगे। खुश भी रहेंगे. So I have done my family medicine. I have done the diabetology course also. So now I am the diabetes expert At Bridge so, Health. At Bridge Health. So जितना भी हमारे पेरेंट्स हमारे लिए मतलब अच्छा नहीं सोचे या उनकी सोच हमारे से नहीं मिलती, बट टू लूज अ पेरेंट इज टू लूज योर Yeah. हार्ट. Yeah. So your father was no more, you went there at house. So how did that did they accept you after that? Did you meet your dad in his last days or something? No, I did not meet him, but yeah, it was his death was very. Visit her, so she loves Pari also. So that is not like. बहुत साल बाद हुआ पर थोड़ा हाँ, बहुत प्यार हो रहा है हो वहाँ रहा पे. है. So it is It not took you a like long that. way to come through all this. Yeah, that is the one thing. And but लेकिन you didn't give up on your spirit. Yeah. You came back and said मैं अपनी जिंदगी जीना जीना चाहती हूँ. चाहती हूँ. और मेरे को आज तक कोई रिग्रेट्स नहीं है वॉट एवर आई हैव डन इन द लाइफ, और कि मैंने गलत डिसीजन लिया. जब मैं भागी थी तो मैं वो गलत कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए गलत कर रही हूँ, अपने लिए गलत कर रही हूँ. ठीक है, थोड़ा दिक्कत हुआ मुझे, स्टडीज़ में दिक्कत हुआ, थोड़ा सा मुझे कैरियर बनाने में दिक्कत हुआ. जो मेरा पीडियाट्रिक्स का ड्रीम था कि मुझे पीडियाट्रिक्स करना है, वो नहीं कर पाऊँगी. पर कुछ ना कुछ तो लाइफ में मिलता है, तो फिर कुछ जाता भी है. And I'll tell you what, Shweta, you know, man proposes, God disposes. So God only gives you what is best for you. Yes. So we think कि हमको लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा है पीडियाट्रिशियन बनना. Maybe God has given you a lovely family. Yeah. And a lovely daughter, Daughter, lovely, yeah. so loving husband जो दुनिया से लड़ गया तुम्हारे लिए. Right? तो आई लव ट्रैवलिंग प्रीति. तो मेरा तो एडवेंचर करने का बहुत मन करता है. तो आई गो फॉर रैलीज, आई गो फॉर कार रैलीज. जिंदगी पूरी जी रहे हो. यस यस, सो दैट्स वन थिंग. आई लव ड्राइविंग. तो मेरे हस्बैंड परी को भी सिखा रहे हो? I don't think so. She is like me. She is very calm and she is more into Bharatanatyam. She is more into dancing, painting and all that. So she is more creative than me. I am Oh. more of outgoing. She is like more of. So Yeah. today, looking back, you know, at your journey, अगर हम उसको हम you know retrospectively सोचे, तुम्हें कभी लगता ऐसा एक मिनट भी फील हुआ कि मैंने कुछ गलत किया या मैं कुछ चेंज कर सकती तो क्या चेंज करती? गलत तो नहीं कहूँगी मैंने कुछ किया. मैं सोचती हूँ कि जो भी मैंने किया है हमेशा ठीक ही किया है, अपने लिए ठीक किया है. चाहे बाकियों के लिए वो हमेशा गलत रहा है, बट फॉर मी ऑलवेज इट वाज लाइक माय डिसीजन. आई हैव टू लिव दैट डिसीजन. एंड कुछ भी हो जाए मैं उसको फेस करूँगी चीज़ों को. और कुछ चेंज कर सकती थी. अगेन आई टोल्ड यू आई वुड हैव डन अ गुड पीजी सीट ऑन माय आफ्टर द मैरिज और समथिंग लाइक दैट. और समवेयर आई वुड हैव रीयूनाइटेड माय पेरेंट्स और समथिंग. उनको दोबारा से कन्विंस करने का कोशिश करती कि नो, तरुण इज़ आल्सो गुड बॉय. वॉट एवर यू वॉन्ट इन द बॉय, एवरीथिंग इज़ देयर इन देयर. बट उसमें मुझे लगेगा कि नहीं, मैं वो कन्विंस नहीं करवा पाई अपने पेरेंट्स के लिए. साथ में रहते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज मैं बचपन से जॉइंट फैमिली में रही हूँ. जब भी रही हूँ तो आई ऑलवेज वांट एवरीवन टू बी टुगेदर, राइट. सो वो हमारी एक
नरिशिंग के लिए भी अच्छा रहता है if you start having Right. all the relationships together, right? Yes, So family somewhere makes a bigger difference in family life. makes a bigger difference. Or somewhere I miss my family also. Still I miss my parents and still I miss That that, love and affection that you wanted from them. yes. So that's अगर आपके जैसे कोई इंसान आपको मिलता है तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहते हो? पर मैं वही एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ डोंट सेक्रीफाइस योर थिंग्स। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे लव हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, प्लीज़ गो फॉर इट, प्लीज़ फाइट फॉर इट, राइट? सो दैट इज़ द वन थिंग एट द एंड कि इट टाइम पे, अपने टाइम पे वो इट विल शो यू द रिजल्ट्स, इट विल शो यू द गुड रिजल्ट्स, वे यू विल बी हैप्पी एट द पॉइंट। अब मैं वापस जाती हूँ अपनी ज़िंदगी में, अब मेरे बेटी के बच्चे होंगे तो उनको भी सुनाने के लिए मेरे पास है कहानियाँ कि हाँ हमने ये ऐसा किया था, नानी ने क्या किया था। इट इज़ नॉट लाइक ऑलवेज शो ऑफ। आजकल की शादियाँ जैसे कि देखती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं, बट समवेयर द कपल्स आर नॉट हैप्पी टुगेदर। सो एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए आई थिंक सो यू नीड जस्ट टू हार्ट्स टुगेदर, नॉट ऑल द अमेजिंग। तो श्वेता, आप जिस तरह की इंसान हैं, आपने सब कुछ किया इस दुनिया में और आपकी बहुत सारी हॉबीज़ है जिसमें आपको लिखने का शौक है, गाने का शौक है, तो क्या आप हमारे लिए कुछ गुनगुनाना चाहेंगी या कुछ शेरो शायरी करना चाहेंगी? ओके, मुझे कुछ याद आ रहा है तो जो मैं हमेशा तरुण के लिए लिखती थी ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम्स। वेरी फेमस पोइट अमृता प्रीतम, पंजाबी एंड पाकिस्तानी पोइट, यू Okay. मस्ट हैव हर्ड अबाउट हर, राइट? सो Yes. आई कैन जस्ट हैव रिटन समथिंग, आई विल जस्ट टेल यू। अरे खुद लिखा है, क्या Yeah. बात है। In Punjabi, so this is the Amazing. one. I'll meet you again. Yeah, so this was the time when we were unsure about relationship, so I used to write. बहुत that. बहुत दिल को छूने वाली कविता है। माय गॉड, बहुत बहुत अच्छी है। Thank you. श्वेता, आपकी कहानी एक मिसाल है, अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। आई विल नॉट से कि हम जैसे बोलते हैं ना कि आपने स्ट्रगल करी या कुछ, आपने सब कुछ किया। एंड thank you for coming on this show, Yeah. for coming to our show and sharing your story, which is not easy. I can understand. Yeah. A small gift of Thank you appreciation so much. from Thank you. Dog Diaries Yeah. for you. So Thank you can you. keep it on the Yeah. cupboard and tell Pari, मुझे भी trophy मिली है। and Yeah, and thank you people so who come much. on a show, they take out so much time and they come, so they don't go empty-handed. Oh, So a so small sweet. token of appreciation Okay, from our thank you, side. thank you so much, Preeti, for inviting me here. Thank Yes. you. Yeah, thank And you. thank you again, Shweta, for being a part of Dog Yeah, Diaries. thank you. Namaste. Thank you. So guys, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? बिल्कुल मस्त बॉलीवुड जैसे, जिसमें खुशी, गम, एडवेंचर, धोखा सब कुछ मिलेगा और पेरेंट्स का प्यार। हमने बहुत कुछ सीखा श्वेता की स्टोरी से कि जिंदगी से बड़ी चीज होती है प्यार, जिंदगी से बड़ी चीज होती है रिलेशनशिप्स, जिंदगी से बहुत बहुत बड़ी चीज होती है पेरेंट्स। बट उन सब में चूज करने का किसी को हक नहीं है और कुछ सही और कुछ गलत नहीं है। तो प्लीज, if you like this episode, please shower your love on all our episode, because we are here to bring you stories of love, triumph, struggles, and anything on this world which will inspire you. So keep watching Dog Diaries for more. Till then, Har Har Mahadev.